So for students who are in class 10th or 11th, I would say first get good grades, get into a college, get a good job, do some hobby. Similarly, having a backup plan is as important as clearing the IAS. I used to be in close contact with my friends and family. Apart from that, one common thing that motivates all of us when we are going for civil services is the public service. If we are doing the yearly magazine, don't do the monthly one. और जो भी पढ़ो, अगर मंथली पढ़ते हो तो सारी रखो उन्हें. एट द एंड सारी मैगजीन्स को 2 or 3 times रिवाइज करो बिफोर प्रीलिम्स. Unacademy. Let's crack it. Hello aspirants, this is Sanskriti Somani, AIR 49 in CAC 2022. In this video, we are gonna start with what is the right time to start UPSC preparation and other such frequently asked questions that are there in the minds of aspirants. So for students who are in class 10th or 11th, I would say first get good grades, get into a college, get a good job, do some hobby, then start the UPSC preparation. Like from the final year of your graduation, you can start the UPSC preparation 1 and 1.5 years before your first prelims. It is a fairly good start. And why I'm saying so? Because when you go into a good college, you develop your personality, which helps a lot during the interview preparation especially. Because without a good marks in interview, you won't be able to get into IAS. Similarly, having a backup plan is as important as clearing the IAS, because the pressure itself of not having any backup plan बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चों पे. That comes out in the mains or prelims or any exam, and you are not able to perform that efficiently that you could have been if you would have tension free. So if you are seeing these are my interview marks. I scored 180 in 2022 and 183 in 2020 interview. This was my second interview. So all this is because I had a fairly good knowledge of everything, not everything like in field, because I had done a job earlier. I participated in sports in college. So all these things are important. So you can't just start from 10th or 11th and start reading advanced books, because even the pattern might change. Yes, what you can do is while in 11th, 12th, you can read your NCERTs fairly efficiently, because NCERTs are going to be the building blocks of this preparation. Now, about how to be persistent and be motivated towards the whole preparation, because for me it took 3 attempts. So it was a journey of 4 years. So one has to be consistent, have perseverance in the whole journey. So for motivation, what I used to do was, I used to be in close contact with my friends and family. Apart from that, one common thing that motivates all of us when we are going for civil services is the public service. So you have to have that right kind of motivation, then it will get you through. And for consistency, what I used to do was with my fellow aspirant friends, we used to manage an Excel sheet where we used to track our hours. You can do any other thing, track your own progress details or track on your own goals. We used to track our hours. I'll show you how we used to do that. So we maintain the sheet like this. I used to have a target. It's flexible for everyone. Someone studies 6 hours, what others study in 12 hours. So it should be on your own comfort. But whatever the target is, it should be consistent. And one thing I was consistent was in reading the news. And then I used to note how much I studied that day, what subjects I covered, and I used to have a graph to get a fairly enough knowledge ki how I am being consistent, because numbers always helps us in getting a true sense of where we are lying, in my opinion. So I used to do this with my friends and we used to track each other's hours. So a sense of competition was there among us. So this helped me in being consistent. And regarding being perseverance or being motivated, you have to have that right kind of motivation as why are you going into civil services.
For me, it was serving the public, working something for the environment or for women empowerment. It will keep you reminding every day that your goal is not yet reached. So that will keep you motivated throughout the journey. So the second most frequently asked question is, how do we balance the time between general studies as in the mains or the prelims and the optional also in that case. So for that, I just want to give you a little sense of what marks did I get in this time where I was selected, and in earlier time in 2020 where I was not selected. So I got in essay I got 129. Earlier I got 133. General Studies 1, I improved from 74 to 98 this year. In General Studies, this is the GS2 paper. This is the GS2 paper. I got 121. I got 105 in my 2020 attempt. GS4, I got a similar marks, 104 to 106. GS3, 83 to 89. In the optionals, I think I improved a lot from 111 to 146, from 144 to 143, and 183 interview to 180. And even in prelims, in 2020 prelims, I got 107 marks. The cutoff was 92, and in 2022 prelims, I was also able to clear the forest examination. So for both of these times, I think I was able to manage my time well. Next, we can discuss how we can manage our time well between prelims and mains. To give you a little idea, I managed full time. I left my job in 2019 and managed full time from July 2019. My first attempt was in 2020. So then managing this GS and prelims. So till December, from July to December, I focused on basic books as this is required in both prelims as well as mains. Basic books like NCERTs, Lakshmikant, and books like these. Then I started my optional coaching also in July. So I was done with my optional coaching by December, January. Then after December to Feb, this end date can be according to your own comfort and how कितना आपने optional कर लिया है, कितना आपने basic books कर लिया है. December to February optional का एक revision, because we are done with more or less done with at least 80% of our optional coaching or by any means that you are doing by this time. So one revision of optional. And other thing that you can do is before prelims, जब prelims की full time preparation March से start कर देंगे, if the prelims is in May end, जो prelims की full preparation के पहले अगर 4 essays लिख पाए, like every 15 days one can write 1 essay, and that will be enough. You will get some confidence that you are going to be able to write something. And why I am saying this कि December तक थोड़ा 5-6 महीने preparation के बाद ये करो, because you are reading newspapers from July to December. That will give you a fairly enough idea of a lot of topics, because न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स बहुत सारे टॉपिक्स कवर करते हैं. सो यू विल हैव सम और द अदर थिंग टू राइट अबाउट समथिंग इन एसे. सो वन शुड स्टार्ट राइटिंग एसे आफ्टर 6 months ऑफ आवर प्रिपरेशन. एंड इन दिस दिसंबर फरवरी ऑल्सो एथिक्स किया जा सकता है. तो एथिक्स, एसे एंड ऑप्शनल, दीज आर 3 थिंग्स. इफ आपका पहली बार है और आपने 6 महीने शुरू किया है, उसके बाद 6 महीने में प्रीलिम्स है, तो दीज 3 थिंग्स अगर आप करेंगे बिफोर मेंस, यू विल बी इन अ फेयरली गुड पोजीशन, because a lot of basic things of the general studies paper GS 1, 2 and 3 will be there in prelims as well. So and this can be divided like optional में 50% time दे सकते हैं हम December to February में, and ethics में थोड़ा time दे सकते हैं newspaper में. And if you are not comfortable that you have not read your basic books or your coaching notes properly, not revised them, सो इस टाइम पे वो भी किया जा सकता है जो मेंस स्पेसिफिक हो. थोड़ा ये टाइम हम मेंस स्पेसिफिक के लिए रख सकते हैं. देन मिड फरवरी और मार्च स्टार्ट से प्रीलिम्स फुल फ्लेज प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए. सो
एक क्वेश्चन आता है जब हम सब कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन बहुत टाइम हम जो टारगेट्स बनाते हैं, हमने सोचा कि हम 15 दिन में लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे, पर कभी कभी वो नहीं भी हो पाता है। पर पहली बात तो हमें अपने टारगेट्स पे स्टिक करने की कोशिश करना चाहिए और थोड़े रियलिस्टिक टारगेट्स भी बनाने चाहिए कि हम कितना पढ़ पा रहे हैं। बिकॉज मेरे ओपिनियन में कि आप एक दिन में 100 पेज 200 पेज पढ़ ले रहे हो बट आपको उसमें से कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, इट्स बेटर टू रीड अ लिटिल लेस बट एफिशिएंटली, बट एट द सेम टाइम एक्सट्रीम ऑन द अदर एंड कि आप एक दिन में सिर्फ 10 ही पेज पढ़ रहे हो, दैट्स आल्सो नॉट फिजिबल। सो मिडिल पाथ यहाँ पे रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं और बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं। अगर हमारे टारगेट्स रह जाते हैं, हमने जो नहीं किया, तो बैकलॉग्स कैसे मैनेज किया जाए? तो बैकलॉग्स को मैनेज करने के लिए व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि थोड़ा थोड़ा टाइम या फिर एक दिन बैठ, जैसे अगर मैंने 6 डेज का टारगेट लिया है तो आई यूज्ड टू कीप 1 डे बफर कि अगर मेरी ये 6 डेज में स्पेक्ट्रम कंप्लीट नहीं हुई तो 1 डे बफर है, जो भी बचा होगा आई डू दैट। और if उसके बाद भी थोड़ा बहुत बच जाता है तो मैं नेक्स्ट चीज स्टार्ट करूंगी, उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा खत्म करते रहूंगी। बिकॉज क्या होता है कि हम कभी कभी किसी एक चीज को परफेक्ट करने में दूसरी चीजें नजरअंदाज हो जाती है। सो यूपीएससी इज द गेम क्या, यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यू हैव टू बैलेंस योर मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा आने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, बट अगर सब में बहुत एक वेल अबव एवरेज मार्क्स आएंगे तो यू विल गेट अ गुड इनफ रैंक, गुड इनफ सर्विस। एंड बैकलॉग मैनेज करने के लिए व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, अगर ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा बैकलॉग हो जा रहा है, लाइक एक बुक पूरा 7 डेज आई एम बैकवर्ड, तो फिर थोड़ा सा अपने टारगेट्स को चेंज भी करती रहती थी। टारगेट्स थोड़े से फ्लेक्सिबल बनाने चाहिए, बट उसमें ऐसा नहीं कि हम एक दिन पार्टी करने चले गए तो हमारा टारगेट छूट गया, दैट शुड नॉट बी द केस। Fairly you should have like 7 day week में 6.5 days of studying, half day you can take a rest, but that's 6 days for one subject and 0.5 days for clearing your backlogs, especially on the Sundays when you are attempting like some other test series or something. The next thing is when we are reading stuff and how to get sense कि हमने जो पढ़ा है वो हमें याद भी है कि नहीं। तो और पहले दिन से टेस्ट करना या पहले दिन से आंसर राइटिंग करना आई विल नॉट सजेस्ट। थोड़ा सा कंटेंट बिल्डअप हो जाए, हम बेसिक बुक्स पढ़ ले, हमने थोड़े, जैसे हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमने एक बार की क्लास कर ली है, इवन मृणाल सर सजेस्ट दी सेम दैट थोड़ा बहुत पढ़ लो, देन वन शुड स्टार्ट दी प्रैक्टिस टेस्ट। स्पेशली टॉपिक वाइज कर सकते हैं फ्रॉम द PYQ व्हेन यू आर रीडिंग दैट। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट, I started them after having 4 or 5 months of my preparation, and then I started with a Atish sir used to run a water test program on Unacademy platform itself. There used to be 20 question, इसमें थोड़ा सा PYQ का मिक्सचर होता था, थोड़ा सा स्टैटिक का मिक्सचर होता था, थोड़ा बहुत करंट अफेयर। सो इससे काफी अच्छा प्रैक्टिस होता था कि जो मैं पढ़ रही हूँ मुझे याद भी है कि नहीं। मैंने आज पढ़ा है कि गवर्नर की ये पावर्स है, वो स्कोप ऑर्डिनरी पावर्स है या नहीं, तो मैंने पढ़ तो लिया है, बट एम आई एबल टू रिमेम्बर दैट? वो सब के लिए टेस्ट देना जरूरी है, बट ये एटलीस्ट एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ लें उसके बाद करें तो बेटर है। या फिर हम जब लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं सपोज, तो पार्लियामेंट वाला टॉपिक पढ़ लिया एंड देन वी कैन स्किम थ्रू द PYQs कि अच्छा PYQs में ये पूछा है, हम ये कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं जो हमने अभी पढ़ा है। PYQs एंड सिलेबस ही आपकी इसमें भागवत गीता है कि वही आपका मैप है, वही आपका शेड्यूल है कि कैसे आपको करना है। सेकेंड इज प्रैक्टिस टेस्ट किया और एक फुल, then we have to practice full test also. So once we are done with the basic books, then weekly, शुरुआत में weekly full test, full length test करे जा सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स के सेक्शनल टेस्ट भी किए जा सकते हैं। लाइक मैंने किया था सब्जेक्ट्स जैसे इन्वायरमेंट हुआ, क्योंकि इसमें हम NCERTs पढ़ते हैं, मैंने क्लासेस की थी सुदर्शन सर की, वो नोट्स पढ़ते हैं, कुछ बुक्स हैं वो पढ़ते हैं, बट उसके अलावा कुछ चीजें जो कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कभी सेक्शनल टेस्ट में आ जाती है, जो हमारी छूट जाती है। तो इन्वायरमेंट में, हिस्ट्री में, इन ऑल 3 मिडिवल, एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये 2 चीजों में भी सेक्शनल करना में
आई यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट कि इन दोनों के सेक्शनल तो करने ही है, एंड पॉलिटी के सेक्शनल भी आई यूज्ड टू डू, बट since polity was my strong domain, so I used to focus more on these two. So you have to judge that on your comfort कि किसकी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, जिस सब्जेक्ट में आपके ज्यादा गलत हो रहे हैं क्वेश्चंस फुल लेंथ टेस्ट में या रोज के प्रैक्टिस टेस्ट जो T20 टेस्ट चलते हैं, उसके हिसाब से आप सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं. एंड देन फुल लेंथ टेस्ट. Full length test में the most important thing is you are attempting a test in 2 hours. Keep a OMR also कि तुम उस 2 घंटे में वो OMR भी भर लो, तुम्हारा धीरे धीरे ये पता चले कि हमें पेपर कैसे करना है. So that full length test after you're done with this, then the most important part comes कि रिवाइज करना है, रिव्यू करना है उस टेस्ट को कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वेयर वी हैव टू पुट इन मोर एफर्ट्स. अब as I said कि numbers are a good guide to ourselves. So I used to have an Excel sheet like this. Like I did a test, I wrote my marks, कितने मैंने attempt किए, उसमें कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं. Then हम elimination करते हैं, कभी कभी हमारे सारे options नहीं पता होते, तो मैंने जो 2 option eliminate कर दिए हैं, उसमें कितने correct हुए हैं, कितने wrong हुए हैं. And I used to have subject wise also कि पॉलिटी में इतने करेक्ट हो गए, इतने रॉन्ग हो गए, इकोनॉमिक्स में इतने करेक्ट है, इतने रॉन्ग है. इससे आई यूज्ड टू गेट अ आइडिया कि कौन से सब्जेक्ट्स में मेरे ज्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट आफ्टर यू आर डन विथ योर फुल लेंथ टेस्ट. सो एनालाइज करेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट साइकिल ऑफ आवर रिविजन है, नेक्स्ट साइकिल ऑफ आवर प्रैक्टिस है, हम उसको इंप्रूव कर पाएंगे. सो द नेक्स्ट थिंग हियर कम्स इज हाउ टू रिवाइज थिंग्स. हम लोग इतना सारा पढ़ते हैं, एनसीईआरटीज हैं, एक फेयरली लॉन्ग बुक लिस्ट है, स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, 400-500 पेजेस की बुक्स हैं. सो रिवाइज करने के लिए वन थिंग इज दिस टेस्ट विल हेल्प यू, दिस विल शो यू कि कहाँ हमें ज्यादा मेहनत करनी है, कहाँ चीजें हाईलाइट करके रखनी है. प्लस PYQs है, हम अब जब सेकेंड रिविजन करेंगे तब तो PYQs को और ज्यादा देखना है, क्योंकि तब हमें थोड़ी बहुत चीजों का आइडिया लगने लग जाएगा, टर्म्स का आइडिया लगेगा, हम PYQ को देख के डरेंगे नहीं. सो जब रिविजन जैसे मुझे हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का रिविजन करना है स्पेक्ट्रम का. सो मैंने एक बार पहले बुक पढ़ ली, फिर मुझे लगा कि यार क्वेश्चंस PYQ से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ज्यादा जो कांग्रेस फॉर्मेशन है उसके बाद के क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो जब मैं सेकेंड बार रीडिंग शुरू करूंगी तो कांग्रेस फॉर्मेशन के बाद का पहले शुरू करती थी, एंड देन दी कांग्रेस फॉर्मेशन के पहले वाला पढ़ती थी. सो वो अपना एनालिसिस जो हम कर रहे हैं हमें खुद करना चाहिए, PYQ का ये एनालिसिस, उससे इट विल बी हेल्पफुल. एंड रिविजन इज सेकेंड थिंग इज एक्टिव रिकॉल. मतलब जैसे हमने पढ़ तो लिया कि फंडामेंटल राइट है 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड वो है, बट हम एकदम से सोच रहे हैं कभी पढ़ते पढ़ते कि अरे अच्छा 19(1)(g क्या था, या क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 का पार्ट है, पार्ट 4 का पार्ट है. या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में देखें तो कांग्रेस के 1930 के सेशन में क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन कब आया था. तो ये चीजें हम अपने आप से पूछते रहेंगे, थोड़ा एक्टिव रिकॉल होगा. Like when I used to do the classes of Sudarshan sir for geography, तो मैपिंग में एक्टिव रिकॉल में क्या करते थे कि एक स्टेट है, सपोज जम्मू एंड कश्मीर है, तो जम्मू एंड कश्मीर में कितने नेशनल पार्क्स है, आई ट्राई टू रिमेम्बर कि अच्छा इतने नेशनल पार्क्स थे जम्मू एंड कश्मीर में. देन कोई छूट गया जो मैंने हेमिस, लद्दाख में हेमिस है, मैं याद नहीं कर पाई जब मैं पहली बार की, अच्छा हेमिस याद नहीं आया था. देन यू गो टू योर नोट्स एंड सी अच्छा हेमिस है, तो नेक्स्ट टाइम यू विल बी मोर फोकस कि हाँ जो भूल गए थे वो भी याद है. फिर दूसरे सब्जेक्ट्स का रिवीजन जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी इज अ फेयरली कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, तो वहां पे आप पढ़ रहे हैं, आपने एक बार आपने सब कुछ बेसिक बुक्स पढ़ ली है, आपने क्लासेस कर लिए हैं, उसके बाद आपको याद आता है अच्छा टेक्टोनिक थ्योरी, तो एक बार आप समझो फिर से उसको कि अच्छा ये कंसेप्ट था. अब क्योंकि कंसेप्चुअल टॉपिक्स में रिविजन में ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको कंसेप्ट्स याद रखने हैं. सो अपने दिमाग में अपने आप को ही समझाते जाओ. इसमें आई यूज्ड टू लाइक, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ वैसे खुद से बात कर, अच्छा ये होता था, टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे एक्सपेंशन होता था, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता था, ऐसे चीजें आप करेंगे तो बेटर होगा रिविजन के लिए. एंड टेस्ट, अगर टेस्ट करते रहेंगे अपने आप याद आता जाएगा, दिस पार्ट इज माई वीक, गवर्नर नहीं आता है अभी उतना, या पार्डनिंग पावर्स नहीं पता है अच्छे से, तो यू विल नो दैट. सो एक चीज है जो एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं,
current affairs. Here also if you see the previous year questions of both prelims and mains, हमेशा क्वेश्चन एक स्टैटिक बेस पे आता है, उस पे कुछ करंट अफेयर्स का तड़का होता है. सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि करंट अफेयर्स करना है बट ओवरडू नहीं करना. जितनी मार्केट में मैगजीन्स आ रही है सारी नहीं कर लेनी, कोई एक करनी है. व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज टिल प्रीलिम्स द हिंदू आई यूज्ड टू रीड इट डेली. दिस वाज विदाउट फेल. मेरे पूरे एंटायर प्रिपरेशन में आई रेड न्यूज़पेपर विदाउट फेल. कुछ भी हो न्यूज़पेपर में टाइम निकल जाता है. यस आई अंडरस्टैंड दैट शुरुआत में जब मैंने 2019 जुलाई में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो इट यूज्ड टू टेक 2 or 3 hours टू रीड अ न्यूज़पेपर्स बिकॉज द फिल्टर करना नहीं आता था. कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, किसको कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है. आई टेल यू कि कैसे फिर मैंने धीरे धीरे डेवलप किया कि कौन से टॉपिक सेग्रीगेट कैसे करने, क्या पढ़ना है. सो टिल प्रीलिम्स आई यूज्ड टू रीड द हिंदू. देन मेंस प्लस इंटरव्यू के लिए आई यूज्ड टू रीड इंडियन एक्सप्रेस. मैं ई पेपर पढ़ती थी. वट एवर सूट्स यू. आई एम मोर ऑफ ई पर्सन की थोड़ा सारा कुछ डिजिटल रहे तो इट्स बेटर फॉर मी. देन अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर बहुत सारे कोचिंग्स अपने डेली न्यूज एनालिसिस निकालते हैं. तो शुरुआत में लाइक इन द इनिशियल मंथ्स ऑफ योर प्रिपरेशन यू कैन वॉच दोस डेली न्यूज एनालिसिस. उससे आपको ये पता चलेगा कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है. ये एडिटोरियल था तो मुझे इसमें से क्या निकालना था. बिकॉज वी डोंट हैव टू रीड द पॉलिटिकल न्यूज और द पॉलिटिकल एडिटोरियल्स, बट कभी कभी उनमें से भी कोई छोटी चीजें इंपॉर्टेंट निकल जाती हैं. सो उन डेली न्यूज एनालिसिस वाले वीडियो से आई यूज्ड टू वॉच दैम ड्यूरिंग माई लेजर टाइम कि पता चल जाता था अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे पढ़ना है न्यूज़पेपर को. साथ में अब एक आता है कि ईयरली मैगजीन पढ़े या मंथली मैगजीन पढ़े, तो दैट्स ऑन योर चॉइस बट डू ओनली वन. इफ यू आर डूइंग द मंथली मैगजीन डोंट डू द ईयरली वन. इफ यू आर डूइंग द ईयरली मैगजीन डोंट डू द मंथली वन. और जो भी पढ़ो, अगर मंथली पढ़ते हो तो सारी रखो उन्हें. एट द एंड सारी मैगजीन्स को 2 or 3 times रिवाइज करो बिफोर प्रीलिम्स. सो दिस इज वन थंब रूल. डोंट रीड एनीथिंग दैट यू कांट रिवाइज फॉर 2 or 3 times. So I used to do yearly magazine for mains as well and for prelims as well. That used to come around for prelims April में आती थी. For mains अगर mains September में है तो August के around monthly magazine आ जाती थी. Because I had done the newspapers fairly well, तो मैं वो कर पाती थी कि magazine से समझ में आ जाता था कि अच्छा हाँ ये हुआ था, इसमें पर ये important है, तो वो एक revision type भी हो जाता था और साथ में उसमें highlight करते करते. So अब इसी में एक क्वेश्चन आता है कि नोट्स बनाए जाए कि नहीं बनाए जाए करंट अफेयर्स के. सो आई थिंक कि अगर कोई चीज है मार्केट में अवेलेबल, वन शुड यूज दैट. द कोचिंग पीपल आर डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर दैट. बट वो जो चीजें यूज कर रहे हैं उसके अलावा हमने अगर आज न्यूज़पेपर पढ़ा है, सपोज आज कोई न्यूज आती है कि एक टीचर है, उन्होंने अपनी सिंस वो स्कूल नहीं जा रहे थे तो उन्होंने अपनी सैलरी रिटर्न कर दी. ऐसे जो ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी या जो भी हमारे एथिक्स पेपर के कीवर्ड्स हैं उनसे मैच करता हुआ कोई एग्जाम्पल मिलता है या कोई भी बेस्ट प्रैक्टिसेस मिलती है कि कोविड में बच्चे सिंस पढ़ नहीं पाए तो झुग्गी क्लासरूम लगाए गए वेस्ट बंगाल में उनके लिए. ऐसी चीजें अगर हमें न्यूज़पेपर में मिलती है वी कैन नोट इट डाउन. यहाँ पे मैं क्या करती थी इसको नोट करने के लिए, आई यूज टू यूज टेलीग्राम में आई यूज टू क्रिएट ग्रुप्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक फॉर सोसाइटी, फॉर पॉलिटी, फॉर एसे, एथिक्स. एंड जो भी ऐसी न्यूज आती थी बेस्ट, किसी ने कोई अच्छा काम किया उस फील्ड में या कोई बड़ा न्यूज आया तो आई यूज टू राइट दैट 1 or 2 लाइन. रिसेंटली लास्ट जैसे तमिलनाडु के गवर्नर ने ओमिटेड स्पीच गिवन बाय द असेंबली, सो आई जस्ट नोटेड डाउन दैट अंडर द हेडिंग ऑफ फेडरलिज्म इन द पॉलिटी सेक्शन. So complete notes I would not suggest making for current affairs because we have the yearly and the monthly magazines. And then the question arises about Yojana and other such a lot of magazines are there. To be very honest, I did not read any of them. I did only these things for current affairs that I'm mentioning now. And one thing that in the initial months for the beginners, how to select topics that you have to read from the newspaper. So किसी भी कोचिंग, बहुत सारे कोचिंग वाले अपने लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर दैट डे निकालते हैं. तो मैं जहाँ क्लास करती थी वहाँ वाले भी निकालते थे एंड आई यूज टू रीड. हाँ, उन्होंने 10 टॉपिक दिए, ये न्यूज़पेपर में से आज इम्पोर्टेंट है. उसके अलावा थोड़ा स्किम थ्रू कर लेती थी. मुझे कोई एक्स्ट्रा चीज में इंटरेस्ट है
जैसे आई न्यू के मैं वॉलीबॉल खेलती हूँ तो इंटरव्यू में वॉलीबॉल से पूछा जा सकता है, तो मैं थोड़ा सा उसका देख लेती थी, बट बहुत माइन्यूटली। मेजर फोकस ऑन कि जो उन्होंने टॉपिक्स दिए, उसके अलावा मुझे सिलेबस के अकॉर्डिंग को इम्पोर्टेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आज अगर सीबीआई एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की लड़ाई हुई है, मतलब मेरे पास बस इतना सा, मुझे बस हेडिंग देखनी कि अच्छा दिस इज अ इशू ऑफ फेडरलिज्म, पूरा टॉपिक अंदर में जाके नहीं पढ़ना है। So next thing is optional preparation. So optional preparation में the first most important thing is choosing an optional is very important because आपकी जो पूरी प्रिपरेशन है उसका 50% टाइम आप ऑप्शनल की पढ़ाई में लगाएंगे, तो आपका इंटरेस्ट भी होना इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे डिविडेंड्स दे ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ओवरलैप हो हमारे जनरल स्टडीज से, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर। सो आई यूज टू, मैंने सिलेबस देखे सारे ऑप्शनल्स के, एंड देन मैंने देखा कि अच्छा ट्रेंड क्या है मार्क्स का, कितने किस में मार्क्स मिल रहे हैं फेयरली इनफ लोगों को। वैसे तो मोर और लेस यूपीएससी देता है मार्क्स, बट फिर भी आई सॉ इट एज अ ट्रेंड कि कैसे देते हैं। आई आस्क्ड माय सीनियर्स फॉर एडवाइस ऑन दैट कि किन ऑप्शनल्स में मार्क्स मिल रहे हैं। बट देन एंथ्रो वाज वेरी बडिंग और हॉट टॉपिक देन, बट आई रेड द एंथ्रो सिलेबस एंड आई रियलाइज कि मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, सो आई डिड नॉट टिक एंथ्रो इवन आफ्टर पीपल वर गेटिंग मार्क्स इन 400s इन एंथ्रो। सो यू हैव टू बैलेंस योर ऑप्शनल चॉइस कि इंटरेस्ट भी हो, मार्क्स भी थोड़े आ रहे हो लोगों के, मटेरियल अवेलेबल हो, इनफ गाइडेंस अवेलेबल हो मार्केट में उस ऑप्शनल के लिए, बिकॉज अगर हम कुछ नया करने चलेंगे तो इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट्स। सो यूपीएससी प्रिपरेशन इज अ लॉट अबाउट स्मार्ट प्रिपरेशन। सो यू शुड थिंक कि नहीं इसका थोड़ा अवेलेबल है, ये मेरा इंटरेस्ट का भी है, इसका जनरल स्टडी से थोड़ा ओवरलैप है। जैसे मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस, सो आई यूज टू यूज फ्रीली दैट GS2 में मार्क्स ऑप्शनल की वजह से आए, ऐसे एथिक्स सब में आई यूज टू यूज दैट फ्रीली। इवन इन इंटरव्यू इंटरनेशनल रिलेशंस वाज इंपॉर्टेंट। सो व्हाइल चूजिंग द ऑप्शनल, एज आई वाज टेलिंग यू, सारे सिलेबस पढ़े and then I decided कि okay, these are three optionals that I am little bit interested in: anthropology, sociology and PSIR in my case. Then I brought the notes, like a little bit of notes of all three, and read like 10 pages I read of each, and थोड़ा एक बार सबके previous year papers देखे कि अच्छा इस तरह के question पूछते हैं, whether I will be able to handle it or not। ये सब देखकर I jumped on PSIR optional. So optional selection is a long exercise. It took me around 15 days to decide upon my optional. Not full time 15 days, but yes, it took a fairly enough time. But then I was stick to my optional कि नहीं ये करना है, and then it did get me dividend. It did get me IAS, because optional में if I would not have got 289, I would not have secured this rank. So this choosing the optional is very important. Next thing is about the political science and international relations optional. So for PSIR, what I did a coaching. I think अगर आप humanities background से नहीं है, and if you think you are not comfortable with the terms of humanities, you can have a coaching for optional, because I was very new and I had a very less time, 1 year to prepare. So I took a optional coaching. So first thing was, while the coaching was running, daily जो भी क्लास में पढ़ाया जाता था, I used to revise that after the class and next day before the class. So इससे जब क्लास चल रही है तभी 2 बार रिविजन हो चुका है आपके नोट्स से, आप फेयरली कंफर्टेबल हो जाओगे आपके नोट्स से। So PSIR में class notes were fairly comprehensive, so I could rely on those. The second thing then is जब classes over हो जाती है, तो I subscribed for the test series and I did the sectional test. In my first attempt also, I did the sectional test, all the sectional tests before prelims. This was also because we got an extension because of the COVID, but I did all the sectional test. Now here also, अगर आप टेस्ट लिख रहे हैं, टेस्ट लिखने के बाद टेस्ट कॉपी चेक होकर आ गई है,
उसके बाद यू हैव टू रिव्यू कि क्या आपको मिले हैं रिमार्क्स, एंड जो टेस्ट आपने दिया उसमें जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए एक बार उसकी कॉपी देखिए, उसने कुछ नया लिखा है क्या, वो हम अपने नोट्स में थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं. लाइक यू हैव टू क्विकली ग्लांस थ्रू 1 or 2, 1-2 क्वेश्चन उसके डिटेल में देखिए, देन क्विकली ग्लांस थ्रू द कॉपी टू सी अच्छा ऐसे अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को, ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे ये क्वेश्चन सिलेक्ट करना चाहिए था, ये वाला नहीं करना चाहिए था. So these things रिव्यू करें, and then model answers, like I use the model answers very effectively in my this attempt, and they did help me, क्योंकि क्लास नोट सब पढ़ रहे थे. So लोगों को क्वेश्चन था कि एडवांस बुक पढ़ लेते हैं, उससे हमारा कंटेंट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, बट वो बहुत टाइम टेकिंग है. उससे बेटर है कि आप जो मॉडल आंसर्स आपको मिल रहे हैं, जो डिस्कशन हो रहा है उस टेस्ट का, आप उसको देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि कैसे आंसर करना था, क्या हम जो न्यूज में जो चीजें आ रही हैं वो कैसे इंटीग्रेट करें. क्योंकि PSIR में जो 1A है वो थोड़ा स्टैटिक है, पर वही 1B थोड़ा डायनामिक है. तो हमें 1A की चीजें यूज करनी है 1B में, साथ साथ थोड़ा करंट अफेयर्स भी डालना है. ये सब चीजें मुझे मॉडल आंसर से समझ में आई कि कैसे करना है. प्लस मैंने टेस्ट लिखा, उसके बाद जब मैंने प्रीवियस ईयर टेस्ट वालों टॉपर्स की कॉपी भी देखी, लाइक इन PSIR ऑप्शनल Utkarsh Dwivedi sir, AIR 5 of 2021, he has posted his copies on his blog. You will get that through the Google search. And उनकी copies देखकर I realized कि आंसर कैसे लिखना है. उन्होंने अपने नोट्स भी पोस्ट किए हैं, तो I also made my notes from the same template and from the template of a previous topper तुषार गुप्ता sir. So उन्होंने सेट इंट्रो कंक्लूजन हर टॉपिक पे बनाए हुए थे कि प्लेटो है तो प्लेटो पे मैं ये इंट्रो लिखूंगी, और अगर उसका आइडियल स्टेट का या उसका फिलोसोफर किंग का क्वेश्चन आता है तो मैं ये वाला कंक्लूजन लिखूंगी. देन इंट्रो कंक्लूजन के साथ जो क्वेश्चन में पूछा है फिर उस कॉन्टेक्स्ट में उसको सेट करके एंड आई यूज्ड टू आंसर दिस. एंड वन मोर थिंग दैट आई टुक फ्रॉम उत्कर्ष कॉपी इज, हम कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, सपोज देयर इज अ क्वेश्चन की स्टेट को कंपेयर करो जो इस बार आया था 2022 में, मार्क्सिस्ट और रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से. सो कैसे इन दोनों के स्टेट के, तो मैंने फिर जो दूसरे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट है, फेमिनिस्ट हुआ, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हुआ, लिबरल्स हुआ, इन सब के व्यू पॉइंट लिख दिए कि ये क्या सोचते हैं मार्क्सिस्ट के बारे में, ये क्या सोचते हैं रियलिस्ट के बारे में. तो ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट को हम यूज करेंगे तो हमारा कंटेंट फेयरली इनफ हो जाएगा, जहां हमें नहीं भी आता होगा कुछ, एंड दैट विल बी अ वेरी गुड क्वालिटी आंसर. सो दिस आई गॉट फ्रॉम हिज कॉपीज. आई हैव आल्सो पोस्टेड दिस ऑन चैनल दैट आई हैव क्रिएटेड. You can go through that. I'll post the link. And regarding PSR, people are very tensed about international relations part. So for this, I used my coaching notes a lot because India US के अगर relations चल रहे हैं तो हमें आज वो डायनामिक है, बट एक उनका एक फेयरली इनफ कॉन्टेक्स्ट है 2022 तक. अगर आप 2023 में प्रिपेयर कर रहे हैं तब तक का जो इंपॉर्टेंट तो होगा वो आपके क्लास नोट्स में होगा. उसके बाद की चीजें आप जैसे ईयरली मैगजीन से ला सकते हैं, आप रोज आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आप उससे पता चल जाएगा. आप जब टेस्ट दे रहे हैं उसके जो मॉडल आंसर्स है, क्योंकि वो लेटेस्ट होंगे जब आप मेंस दे रहे होंगे उसके पहले, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको नई अपडेटेड मिल जाएंगी. एंड दिस वाज द सोर्स दैट आई यूज्ड फॉर दिस IR पार्ट. बहुत सारी चीजें नहीं की जो रेगुलरली मैं करंट अफेयर्स के लिए करती थी वो, प्लस जो टेस्ट में मॉडल आंसर्स दिए जाते थे उसमें क्या अपडेशन हुआ है, एंड प्लस जब मैंने क्रैश कोर्स किया था प्री और मेंस के बीच में कोचिंग का, तो उन्होंने कुछ मटेरियल दिया था. सो दैट मटेरियल वाज इनफ टू प्रिपेयर द इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट, बिकॉज इवन इन पेपर 2A 2B, so 2A is static, 2B is a bit dynamic, but you have to use 2A and 2B. like तुम्हें बताना है कि इंडिया पाकिस्तान का अगर प्रॉब्लम है तो फंक्शनलिज्म कैन बी एन अप्रोच टू सॉल्व दिस. सो इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए फंक्शनलिज्म क्या है, वो हम 2A में पढ़ते हैं. सो हमें 2A 2B 1A 1B चारों पेपर को अलग अलग ना देखते हुए सबको फ्रीली एक दूसरे में यूज करना चाहिए. जैसे प्लेटो का फिलोसोफर किंग है तो प्लेटो का ये बात है कि वर्च्यू होनी चाहिए, तो हम आज के कंटेक्स्ट में भी देख सकते हैं कि हाँ हमें वर्च्यू वाला इंसान चाहिए हमारी पॉलिसी मेकिंग या हमारे लेजिस्लेचर में. सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स, दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू डू इन योर ऑप्शनल प्रिपरेशन.
One more important thing in PSIR what I did was short notes. So I use the short notes of a previous topper. You can also do that. You can use Utkarsh sir's topper notes. And what I did was हर सेक्शनल टेस्ट हो या फिर फुल लेंथ टेस्ट हो उसके पहले एक बार पूरा अपने क्लास नोट्स पढ़ती थी अच्छे से, एंड जिस दिन टेस्ट देना उसके एक दिन पहले या सेम डे एक बार वो उस टॉपिक का वो शॉर्ट नोट्स पढ़ लेती थी. उसको फिर मैंने वो टॉपर नोट्स को अपने हिसाब से भी कर लिया था, थोड़ा मुझे कैसे समझ में आ रहा है उस चीजें से, क्योंकि एज इट इज किसी का समझने से हमें कभी कभी नहीं समझ में आता है, अपनी चीजें ऐड कर सकते हैं तो बेटर होता है. एवर नोट आई यूज टू यूज एवर, एक ऐप है एवर नोट, वो यूज किया है मैंने इसके लिए. सो शॉर्ट नोट्स जब किया तो एवर नोट्स पे पहले उस टेस्ट के वाले दिन शॉर्ट नोट्स यूज किए एवर नोट के. थोड़ा उससे क्या हुआ, इतने दिन जो मैंने पढ़ा था, जैसे प्लेटो पढ़ने में मुझे 2-3 दिन लग जाते थे क्योंकि 50% टाइम ही पढ़ती थी ऑप्शनल, तो उसके बाद फाइनल डे प्लेटो के एक बार में सारे टॉपिक्स, उसकी थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसका थ्योरी ऑफ मिथ ऑफ मेटल्स, फिलोसोफर किंग, फिलोसोफर क्वीन और ये सब चीजें एक बार में आ जाती थी. अच्छा इनकी ये थ्योरी है, इस तरह से एरिस्टोटल वगैरह सबका. सो ये शॉर्ट नोट्स ऐसे यूज करती थी. फिर यही शॉर्ट नोट्स मुझे सबसे ज्यादा काम आए जब हमारे मेंस के टाइम में जीएस और ऑप्शनल के बीच में जो 5 डेज का गैप होता है, तो हर दिन मैंने एक 1A का एक दिन पूरे शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए, 1B के पढ़ लिए, 1C के, 1D, 2A के, 2B के. सो ऐसे करके एक बार पूरा ऑप्शनल रिवाइज हो गया शॉर्ट नोट्स की वजह से. बट जब मैं जो 3 मंथ्स का गैप होता है प्रीलिम्स और मेंस में, उस टाइम पहले क्लास नोट्स पढ़ती थी, फिर शॉर्ट नोट्स पढ़ती थी. और ये शॉर्ट नोट्स को अपने हिसाब से एडिट मैंने प्री के पहले कर लिया था, when you are doing that revision in the December-February cycle. Apart from that, if we go section by section in PSIR optional, so 1A is mostly static. You have theory of state, you have different thinkers, you have Indian political thought. तो ये सारे जब आप पढ़ रहे हो, आपको थोड़ा सा जब आप नोट्स पढ़ रहे हो तो इनको थोड़ा याद करने की कोशिश करो. ये थोड़ा ऐसा है, हम समझ तो लेंगे कि हाँ प्लेटो ने बोला था वर्च्यू वाला इंसान होना चाहिए, कम्युनिज्म होना चाहिए फैमिली का, ये बार बार पढ़ के हमको याद रखना चाहिए. हमने पढ़ लिया है प्लेटो, सपोज उसकी थ्योरी ऑफ आइडिया पढ़ लिया है, उसके बाद एक बार एक्टिव रिकॉल करो, अच्छा थ्योरी ऑफ आइडिया में ये था. सो ऐसे करके आपको ये आपके टिप्स पे होना चाहिए 1A वाला पार्ट, तो आप इसको फेयरली यूज कर पाएंगे 1B में भी. तो क्लास नोट्स एकदम you have to learn the class notes by heart. In my case it was the class notes. Any notes that you make for PSIR. Then while attempting the paper, there is a 4C approach. So what you do is, you first कोई भी क्वेश्चन आए तुम कॉन्टेक्स्ट दो कि अगर प्लेटो ने फिलोसोफर किंग की थ्योरी दी है तो कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्योंकि एथेंस और उनमें लड़ाई हुई थी, उसके बाद वो लोग हार गए थे तो उन्हें दिख रहा था कि नहीं हमारा करप्ट लोग कर रहे हैं. सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट थ्योरी ऑफ आइडिया, थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग. सो यू हैव टू सेट द कॉन्टेक्स्ट. देन you have to compare Plato's theory with other, कि प्लेटो की थ्योरी थी कि स्टेट को एक इंसान से रन किया जाए, वहीं एरिस्टोटल की थ्योरी थी कि नहीं रूल ऑफ लॉ होना चाहिए. तो you have to compare 1 or 2 scholars. Then criticize, कि प्लेटो की थ्योरी की जो भी आपने क्रिटिसिज्म पढ़े हैं कि नहीं वो अथॉरिटेरियन में रूल में चला जाता है, कार्ल पॉपर ने उनका क्रिटिसिज्म किया है, तो यहाँ पे स्कॉलर्स मेंशन करना इज इम्पोर्टेंट. सो यहाँ क्रिटिसाइज कर सकते हैं. देन यू कंक्लूड. ऑन कंक्लूजन में यू कैन ब्रिंग कंटेम्प्रेरी, कि कैसे आज भी हम इंडिया में अरिस्टोटल वाला रूल ऑफ लॉ फॉलो कर रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, नो अदर पर्सन इज सुप्रीम. सो यू कैन ब्रिंग दैट कंटेम्प्रेरी टू कंक्लूड. ऑल्सो से समथिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द थिंकर दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. सो दिस वे आई यूज टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट सेट करेंगे, थ्योरी क्यों दी, फिर उसे कंपेयर करेंगे डिफरेंट स्कॉलर्स से, देन क्रिटिसाइज करेंगे, देन हम कंक्लूजन करेंगे. वहां पे हम कुछ करंट अफेयर या कुछ कंटेम्प्रेरी ला सकते हैं, थोड़ा हमारे आंसर को डिफरेंशिएट करने के लिए.
I'll post my answer copies, and you can also see Utkarsh sir's copy or previous year toppers copies to see how to conclude for different cases. Then one important thing that you do here in 1A is make a list of scholars, their books, and what is the main idea given in their book. For example, चाणक्य की बुक है अर्थशास्त्र, मेन आइडिया है जियोपॉलिटिक्स, स्टेट क्राफ्ट, सप्तांग थ्योरी, मंडल थ्योरी. सो आप ऐसी अगर लिस्ट बना के रखेंगे तो इट विल बी गुड, क्योंकि आपको पता होगा कि अच्छा अगर मैकियावेली की बात आई है तो मैं चाणक्य से कंपेयर करूंगी, एंड देन चाणक्य जहां लिखा है तो उनकी बुक लिखना है. यू हैव टू मेंशन द बुक्स ऑफ द स्कॉलर्स विद देयर नेम्स, कि अगर प्लेटो की बात आ रही है तो उसके साथ साथ उनकी बुक का नाम लिखना है. कार्ल पॉपर की बात आ रही है तो उनका नाम लिखना है कि नहीं इन्होंने ये लिखा था कि एनिमीज ऑफ द ओपन सोसाइटी, एंड देन उन्होंने मार्क्स और सबको क्रिटिसाइज किया था. यू हैव टू राइट दोज थिंग्स, दिस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज PSIR इज चेक्ड बाय स्पेशलिस्ट. आपने सेट इंट्रो और कंक्लूजन बना लिया. लाइक फॉर एग्जाम्पल कि प्लेटो के लिए एक सेट इंट्रो है कि प्लेटो is the father of political philosophy और Aristotle is the father of political science, and then जो question पूछा है उसका साथ थोड़ा 2-3 लाइन का इंट्रो लिख देंगे. that will be good enough intro. and then अगर आपको कोई टॉपिक में कोई अच्छा इंट्रो, पर एक बार कोई इंट्रो सेट कर लिया आपने तो उससे फिर स्टिक टू इट, बिकॉज आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तब आप उसको अच्छे से रेप्लिकेट कर पाएंगे. फिर सेकेंड थिंग बाय अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन इज, आपको कोई क्वेश्चन दिया है, suppose so the question is, suppose examine human rights are complex and contested social practice that organize relation between individual, society and state. तो जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं इसको, तो आपको बार बार जहां आप क्वेश्चन में एड्रेस कर रहे हैं, आप पहले ह्यूमन राइट्स का थोड़ा कंटेक्स्ट देंगे कि ये कंटेक्स्ट है, ह्यूमन राइट की जो डिबेट है हमेशा चलती रही है, ह्यूमन राइट लॉक के नेचुरल राइट से आता है, एंड देन थोड़ा कंटेक्स्ट सेट करेंगे. जब मेन क्वेश्चन पे आएंगे, use the line of question in the answer कि human rights are complex and contested social practices because this. इससे एग्जामिनर को पता चलेंगे ओ आप इधर जो मेन पार्ट ऑफ क्वेश्चन है उसको एड्रेस कर रहे हैं, दैट यू आर एड्रेसिंग द क्वेश्चन. सो यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ पेपर इन द आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरलाइन करो उस लाइन को. सपोज आप क्वेश्चन फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि आप बताओ कि अच्छा ह्यूमन राइट्स ऐसे ऑर्गेनाइज करता है रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड स्टेट. ऐसे करके आप क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके आप उसको लिखो अपने आंसर्स में. यू विल सी दैट दोज थिंग्स व्हेन यू सी माय कॉपीज, एंड आल्सो उत्कर्ष सर्स एंड अदर टॉपर कॉपीज. जस्ट लुक एंड टू दैट कि ये चीज हमें GS में भी करनी चाहिए और ऑप्शनल में भी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बहुत सारा कंटेक्स्ट सेट करते हैं, देन उसके बाद 20 मार्क का क्वेश्चन में स्पेशली ये सब चीजें करनी चाहिए. नाउ कमिंग टू 1B. सो यहाँ पे जो भी टॉपिक है, सपोज हमारी जुडिशरी पे क्वेश्चन आता है, तो आई प्रिपेयर्ड सेट इंट्रो कि जुडिशरी पे क्वेश्चन आएगा तो एक लॉर्ड ब्राइस है, उनकी एक लाइन थी, आई यूज टू राइट दैट कि ये लाइन है, ये मुझे लाइन लिखनी है इस क्वेश्चन में जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा. फिर उसके बाद थोड़ी सी थ्योरी लिखें कि जस्टिस इज द आर्किटेक्टोनिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जस्टिस लेना कितना इंपॉर्टेंट है. वहां से हम जुडिशरी की स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 20 मार्क का क्वेश्चन अगर जुडिशरी पे है या कलीजियम सिस्टम पे है, थोड़ा हमें कंटेक्स्ट सेट करना पड़ेगा, और इस कंटेक्स्ट सेट में ही हमारा जो 1A का नॉलेज है वो काम आएगा. अब इसके लिए सारे 1A याद होना चाहिए, थ्योरी ऑफ जस्टिस याद होनी चाहिए, प्रोसीजरल जस्टिस क्या है, सब्सटैंटिव जस्टिस क्या है, रॉल्स की थ्योरी क्या है, ताकि हम उसको फ्रीली यूज कर पाए. Then we come into the main topic जो हमारे नोट्स में भी होगा, we can integrate that. Then conclusion में हम यहाँ पे करंट अफेयर्स का conclusion में काफी यूज कर सकते हैं. जैसे अगर फेडरलिज्म की प्रॉब्लम्स इंडिया में आती है, फेडरलिज्म एंड गवर्नर का रोल, तो हम लिख सकते हैं कि अभी जैसे महाराष्ट्र के गवर्नर वॉज इन क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, सुप्रीम कोर्ट के हम केसेस यूज कर सकते हैं. और 1B के जो क्वेश्चंस हैं, हमें आर्टिकल नंबर हमें यूज करना चाहिए. अगर गवर्नर का क्वेश्चन है या UPSC से या कोई इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेरी यूज फ्रीली द आर्टिकल्स
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए ऑप्शनल में इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा एक बार सब्जेक्ट पूरा पढ़ लें, उसके बाद आप आंसर राइटिंग थोड़ी करें, आपके बेटर हो जाएंगे आंसर्स. So my answers improved a lot from my previous attempt to this attempt because I was able to recall more things. Other than that, वही जो हमने वहाँ किया है कि स्कॉलर्स हैं, उनकी बुक्स हैं, हमें वो सब कोट करना चाहिए, आर्टिकल्स, डेटा, बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो भी हम थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, वी शुड डू दिस. पर अकेडमिक रखेंगे अगर स्कॉलर्स और थोड़ी 1A की थ्योरीज ला पाएंगे यहाँ पे तो. देन 2A. सो 2A जो पार्ट है वो ऐसा लगता है कि बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स समझ में नहीं आता, बट अगर थोड़ा सा देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, कुछ बहुत कॉमन क्वेश्चंस है जो आते हैं. सो व्हाट यू कैन डू इज कि तुम देखो, तुम्हारा सिलेबस ले लो, फिर देखो टॉपिक्स की, अच्छा इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं कि अगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है तो मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से इतनी बार क्वेश्चन आया है, 2022 में आया है या नहीं आया है, 2021 में आया है नहीं आया, ऐसे लास्ट like till 2017 you make a list and you will know कि अच्छा इससे क्वेश्चन आ रहा है. ये पूरे PSR के लिए किया जा सकता है. This I knew कि M.N. रॉय से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं आजकल, तो M.N. रॉय का पढ़ने में मैंने पढ़ा, पर 1-2 पेज का कंटेंट पढ़ा, क्योंकि इतने साल से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, 10 मार्क का क्वेश्चन पूछेंगे. और ऐसा भी नहीं है कि छोड़ना नहीं है टॉपिक, छोड़ना कोई भी नहीं है, बस यू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस दैट यू आर गिविंग टू अ टॉपिक डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो 2A में भी सिंस इट्स अ थ्योरी, सो अगेन हम 1A का जो अप्रोच था हम फिर से यहाँ पे फॉलो करेंगे. 4C वाला अप्रोच, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कैसा है, मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कैसा है, क्या प्रॉब्लम्स है मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के, या क्या प्रॉब्लम्स थे ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो मॉडर्न वाले ने एड्रेस किए, एंड नेक्स्ट अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, नया हम क्या कर रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में. Similarly for globalization and such other topics. So this part is also a very theory वाला part. इसमें international relations की different theories है, realism, liberalism, social constructivism. So हम किसी भी एक पे क्वेश्चन आता है, हमको सारी दूसरी थ्योरीज का थोड़ा हेल्प लेना चाहिए उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए. फिर 2B, यहाँ पे फिर से जो हमारा 1B का अप्रोच है हम वो यूज करेंगे क्योंकि करंट है, बट 2A की 1A की थ्योरी हमें यूज करनी चाहिए कि कैसे जैसे मेकियावली ने या चाणक्य ने जो 1A का पार्ट है उन्होंने बोला था कि नहीं, एक स्टेट एक ऑर्गेनिक होता है, एक्सपेंशन उसका नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ होता है कि स्टेट तो एक्सपैंड करेगा, इसकी वजह से वॉर होता है लोगों में, तो उसकी वजह से हम इंडिया पाकिस्तान के नेबरली रिलेशंस देख सकते हैं कि अच्छा ये तो थ्योरी ऐसा बोलती है इसलिए इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन ऐसे. फिर जब कंक्लूजन करेंगे, जब सोल्यूशन देंगे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के, तब बता सकते हैं कि फंक्शनलिज्म वाली थ्योरी बोलती है कि हम कुछ पीस बाय पीसेस कर पाएंगे, कुछ थोड़ा थोड़ा अगर ट्रेड थोड़ा बढ़ा लिया तो हमारे रिलेशन दूसरे इट विल बी अ डोमिनो इफेक्ट ऑन अदर रिलेशंस. ऐसी चीजें हम यूज करेंगे. ये जैसे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यूज कर लिया कि ये सिर्फ परसेप्शन की बात है कि रिलेशंस खराब है, तो इस तरह से हम फ्रीली अगर यूज करेंगे पूरे चारों पार्ट को एक दूसरे में, तो इट विल बी अ बेटर आंसर, क्योंकि कंटेंट सबके पास वही है. इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर यूजिंग दैट कंटेंट रादर देन गोइंग फॉर एडवांस बुक लाइक ओपी गोबा और 10 बुक्स हैं बाजार में. उसकी जगह जो नोट्स हैं हमारे पास उसको अच्छे से पढ़ें, उसको यूज करें फ्रीली एंड शॉर्ट नोट्स बनाएं. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्शनल. थैंक यू.